is define beta function. So I'm writing the definition of beta function. Okay. The Okay, beta sir. function Sir, last, yes, sir. last year, yes, first batch. लास्ट लास्ट क्लास जो हुई थी ना आपने उसका पीडीएफ आप भेजा नहीं सर? ये क्लास के एंड में आप मेरे को बोलिए, पहले तो अपन अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ओके। द है मेरे पास अवेलेबल है, विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले आज की क्लास तो हो जाने दीजिए। द ओके बीटा सर। फंक्शन इज denoted by, we use this symbol capital B m comma n, and it is it is defined defined as a definite integral definite integral. So that beta of m comma n is equal to, this is your formula, beta of m comma n is equals to integral of 0 to 1 x power m minus 1 and then 1 minus x raised to the power of n minus 1 into dx is the formula of the beta function. Beta of m comma n is equals to integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x to the power of n minus 1 into dx. And be careful that here m is a positive number, n is also positive. We can define the beta function for the positive values of m and n. So beta of m comma n is equals to integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x raised to the power of n minus 1 into dx. Definition अगर पूछा एग्जाम में, then this much is enough. And now we have some ओके properties सर। to prove. There are some properties of beta functions. It may be the possibility that you may get the properties here in exam. Properties of beta function. Properties of beta function. So rarely the four properties are asking in exam. That those four properties, let me write one by one. This is the first one. First one is beta of m comma n can be written as beta of n comma n, which is called symmetric property. m comma n को n comma m के जैसा भी लिख सकते हैं. Okay. M means here m will come first. N means here n will come first. Okay. If n will come, then here n or here n. This is called symmetric property. ओके सर। Second property of beta function, which is important according to my point of view, it's important property. Beta of m comma n is equals to, later on we use these properties as a formula. 0 to infinite ओके। x power m minus 1 e divided by 1 minus x raised to the power of m plus n into dx. Or this can also be written as, or option is there, 0 to infinite x power n minus 1 divided by 1 plus x raised to the power of 1 plus x raised to the power of m plus n into dx. This is your second property of beta function. Third one, also important, beta of m comma n is equals to 2 times integral 0 to pi by 2 sin theta all to the power of 2m minus 1 into cos theta all to the power of 2n minus 1 into d theta. These are the three properties and this is the definition. All are important examination point of view से. ओके सर। Now we have to prove this property. Not खाली लिख के याद करना नहीं है. We have to prove the property. Property का derivation. First property derivation देख लीजिए. Prove करके बताना.
Okay. Yes, sir. So now this is the first property. You have to prove that beta of m comma n value is also equal to beta of n comma m. Now I can use the only definition. Definition ही आपको पता है. So by definition जी. of, what do you say? Beta function. M comma Beta beta of function m comma n is equal M to comma n integral 0 to 1 x power m minus 1 n minus 1 1 minus x bracket raised to the 1 power of minus x power n minus of 1 n minus dx 1 is dx. equation number 1. We use this information to prove the above result. ठीक है. ओके. Yes, sir. अब यहाँ पर अपने को एक फॉर्मूला है इंटरमीडिएट का, that is integral 0 to a f of x dx can be written as integral 0 to a f of a minus x dx. What do you mean by this formula? इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसको? When lower limit is 0, upper limit may be Yes, anything, sir. then you see where is the change. X can be written as a minus x, where a is the upper limit. Okay. Okay. Yes, sir. So this formula I want to use it for this one, or definition में lower limit तो 0 है ना, I can use the formula. So now our question जी will sir. changes to beta of m comma n is equal to, you can see the formula limit remains same, limit remains same. X can be written as upper limit minus x, upper limit is 1 here, 1 minus x Okay. to the 1 power of n minus minus. x d Okay. n. Yeah, 1 as it Yes. is, minus as it is. Again, this x can be written as 1 minus x all to the power of n minus 1 again as it is, and dx also as it is. We just multiply with minus sign for both of these two terms. Integral 0 to 1, 1 minus x किससे raised to the मल्टीप्लाई power कर of रहे हैं अपन? j, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये minus है. ओके. 1 minus 1 minus into minus plus 1 plus x to the power of n minus 1 into dx. If you notice अब वो that 1 plus minus 1 1 तो minus 1 0 हो जाता. cancel हो जाए. This is equal हाँ. to integral 0 to 1. I want to write this value first. X power n minus 1 I want to write here before. उसके बाद ये लिखता हूँ 1 minus x raised to the power of n minus 1 मल्टीप्लाई में है, we can change it into dx. अब जरा इसको नोटिस करिए, यहाँ m पहले आ रहा था, यहाँ m पहले आ रहा, यहाँ n हाँ, minus काई 1 को से ऐसा पहले. कर रहे हैं? नहीं को ऐसा कर रहे. We have to prove that it is, this value is nothing but n comma m now. आओ, इक्वल प्रूफ करना है. बी बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू बीटा n कॉमा m. That's your first property, symmetric property, right? एग्जाम में खाली आपको prove that बोल के आता है. यस सर. चलो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे. यस सर. Second property is, second one is beta of m comma n is equals to integral 0 to infinite x to the power of m minus 1 by 1 plus x 1 raised to the minus power of x raised to minus the नहीं power plus of n plus n dx. dx. बस और ऑप्शन रखो, बाद में देखेंगे इसके बारे में. ओके. ओके. आई कैन यूज द डेफिनेशन ओनली. प्रूफ में मैं सिर्फ उसको डेफिनेशन को यूज कर सकता हूँ बस, और इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को चाहे तो यूज कर सकते हैं. बाय बाय. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है सर? अभी क्या प्रूफ करें जी, ये क्या प्रूफ करें आप, ये क्या प्रूफ करें? बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ n कॉमा n. which by definition of beta function, what is the formula? We have to read and again read the formula to memorize clearly. 0 to 1 x power m minus 1 into 1 minus x to the बाय power of
n minus n 1 plus into n. dx. ओ Formula, ओके। definition. This is अच्छा, this is फर्स्ट this one. प्रॉपर्टी का Property वन नहीं, माइनस एक्स रेस टू द। formula, definition, definiशन वाला फॉर्मूला यूज करके प्रूव करो। ओके, यस सर। चलिए अब क्या करना है, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, आंसर को देखो। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं। एक्स पावर एम माइनस वन यहाँ पर भी है, एक्स पावर एम माइनस वन यहाँ पर भी है। तो लिमिट्स तो डिफरेंट हो जा रहे हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग हो रही, तो डिनोमिनेटर को अपन सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्म के जैसा बनाना। उसके लिए एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है, अच्छे से देखिए। पुट पुट सब्स्टिट्यूशन यूज करें अपनी। पुट डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/1 + x। ये जो सब्स्टिट्यूशन जहां पर भी अपन कर रहे हैं वो आपको सीधा सीधा मेमोराइज कर लेना है। क्या कैसा कर रहे सर? प्रूफ करना है या नहीं है, ये प्रूफ करना है ना आपको। हाँ। हाँ? उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन लेना, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट ओके। करना है, वैल्यूज करके सिंप्लीफाई करता है, ये रिजल्ट प्रूफ होता है। वो प्रूव करने के लिए कर। ओके, ओके सर। सर यस सर। चलिए अभी क्या करना है, एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी आपको थोड़ा इजी है ऐसे देखना। तो एक्स इज इक्वल टू, इंटू एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं अपन, 1/1 + y। ये 1 + x है ना, तो 1 + y ले रहा हूँ मैं वेरिएबल। तो जब आप इसको ओके सर। डिफरेंशिएट करेंगे, dx करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x²। differentiation of 1/x is -1/x². This is the formula. See, I am writing here. Derivative of, जो भी 1/x फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, that you may get your answer is -1/x²। ठीक है, तो ये यस वन सर। बाई वन प्लस वाई को -1/1 + y² लिख सकते हैं। ये ds को रिप्लेस करने का ऑप्शन मिल गया, x को रिप्लेस करने का ऑप्शन मिल गया। अब क्या करना है, लिमिट्स को भी चेंज करना। लिमिट चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो x इज इक्वल टू 1/1 + y। अब लिमिट चेंज करने के लिए दिस इंप्लाइज दोनों साइड रेसिप्रोकल करें। 1/x इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करते क्या बचता, 1 + y ओनली। करेक्ट, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर। यस सर। अब लोअर लिमिट हाँ, देखिए वन आप। बाई एक्स निकाल लिया तो वन प्लस वाई बचता। जी, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, आप x की प्लेस पे अगर 0 रखे, दिस इंप्लाइज 1/0 इज इक्वल टू वन विच इज प्लस वन नथिंग बट इंफिनिटी। 1 + 1। 1/any number by 0 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी इज इक्वल टू ओके। y की वैल्यू इंफिनिटी बन जाती है। अब आप बोलेंगे सर 1 कहाँ गया, इंफिनिटी +1 इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 इंफिनिटी, इंफिनिटी होल स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ जो भी ऑपरेशन करेंगे द आंसर विल बिकम इंफिनिटी। तो लोअर लिमिट आपको मिल गई, y इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब इसी के अंदर 1/x इज इक्वल टू 1 + y में ये लिखेंगे अपर लिमिट 1, अपर लिमिट। सर ऐसा अपन इन्फिनिटी का को रख रहे हैं? इंफिनिटी प्रूव करने के लिए रख रहे हैं, आया हुआ आंसर। क्यों आता है ऐसा इन्फिनिटी? क्योंकि 1/0 नीचे क्या जीरो होता, है बोल क्या? 1/0 क्या होता, एनी नंबर बाई 0 इंफिनिटी, यहाँ पर लिखता हूँ, एनी हाँ। नंबर बाई 0। ये बेसिक क्लास का रूल, इंफिनिटी। 0/any नंबर, ये तो आपको पता होगा, 0/any नंबर इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ। यस। वो इसलिए अपर लिमिट अब रखेंगे, एक्स की प्लेस पे 1, यहाँ पर देखो 1 है, तो 1/1 इज 1, 1 इज इक्वल टू 1 + y। ये दोनों साइड से 1 और 1 कैंसिल, y बिकम 0। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये एक्स पूरा सब्स्टिट्यूट, ये येलो कलर जो था ना, येलो कलर को अपन व्हाइट कलर में सब्स्टिट्यूट कर रखा था। तो अब क्या हो जाता, ओके। बीटा ऑफ m का n क्या बन जाता, देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं बार बार बोल, इज इक्वल टू लिमिट चेंज हो रहे, लिमिट अपर लिमिट यहाँ पर हो गई कितनी, इंफिनिटी, लोअर लिमिट हो गई 0। ठीक है, यस सर।
एक्स की प्लेस पे रख रहे हैं अपन 1/1 + y होल टू द पावर ऑफ n-1 एज इट इज m-1 इट इज m-1 इंटू 1 माइनस फिर एक्स की प्लेस पे आ गया फिर से 1/1 + y होल टू द पावर ऑफ n-1 एज इट इज इंटू dx की वैल्यू है -1/1 वन वन प्लस प्लस वाई वाई होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और यहाँ पर dy एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। ओके। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस को बाहर निकाल, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे। ये माइनस की वजह से ये इन्फिनिटी का क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो फार्मूला जो उसके रिगार्डिंग है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है a to b f(x) dx, इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये b to a हो जाता है, b to a f(x) dx। लिमिट चेंज हुआ है, तो ये माइनस की वजह से इसका लिमिट चेंज होके 0 to ∞ हो जाए। ओके तो देखिए सर। 1 to the power of anything will get 1 only divided by 1 plus y whole power m-1 as it is। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लिया क्या हो जाता, 1 plus y is the LCM, we get here 1 plus y -1 all to the power of n-1। ओके, ये माइनस से तो लिमिट चेंज हो गया, तो अब यहाँ बचा खाली 1/1 + y होल स्क्वायर इंटू डी। यस सर। +1 -1 कैंसिल, दिस वन +1 -1 कैंसिल, और ये जो पावर है ना दोनों को अप्लाई करके 0 to ∞ 1/1 + y all to the power of m-1 इंटू y का पावर n-1 है एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर बाई 1 plus y का भी पावर प्लस n माइनस, वाई। पावर दोनों को अप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बराबर से। ओके सर। 1/1 + y होल स्क्वायर इंटू डी। नाउ यू सी हियर, इसको वन प्लस वाई को क्या खोल रहे गई को नहीं अपन वन प्लस वाई होल स्क्वायर को। जरूरत नहीं है, बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तीनों का बेस देखो सेम है, हाँ। तो बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड का फॉर्मूला आपको पता है ना। ऐड करेंगे पावर्स को नहीं m-1 प्लस n-1 प्लस, सर, एक बार वो फॉर्मूला लिख दीजिए ना। ये है फॉर्मूला 6 क्लास का फॉर्मूला, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ओके सर। बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी, तीनों का बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो। यहाँ पर 1 इंटू n-1 बोल तो y⁻n-1 ही आए इंटू डी। अब क्या कैंसिल होगा, यस सर। ये 2 से ये -1 -2 भी कैंसिल होगा। फाइनली व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट्स लेफ्ट, 0 to इनफाइनाइट। infinite वेरी गुड, y पावर, y and y power n minus 1 ये काम करेंगे और by एक स्टेप कम कर देंगे, y को x से रिप्लेस कर दीजिए। पूरों पूरों को y को पूरा x से रिप्लेस करेंगे, x⁻n-1/1 प्लस x ऑल टू द 1 पावर plus ऑफ x m+n, m m+n m बचा plus n। इंटू dx। हाँ। देखिए आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। और और ऑप्शन अगर इसका रहता तो n-1 रहता था ना, तो इसको अपन और ऑप्शन यूज हाँ। कर लेंगे, 0 to ∞, x पावर n को m से रिप्लेस करेंगे, m-1/1 प्लस x प्लस टू द पावर ऑफ m+n m इंटू dx। plus n इसका और dx। ऑप्शन अपन नहीं लिखे थे, अगर आपको लिखना है तो यहाँ और ऑप्शन लिख लेंगे, वो रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। जरा शुरू से एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले अपन क्या करें, डेफिनेशन यूज करें, फिर ये सब्स्टिट्यूशन लिए यस। वेरिएबल को चेंज करें, एक्स को वाई से 1/1 प्लस फिर डिनोमिनेटर को रिप्लेस करना, तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेके डेरिवेटिव करें, एक्स का डिफरेंशिएशन dx 1/y का -1/x²।
-1/y² होता है, y है। फिर क्या करना, लिमिट्स को चेंज यस करना। सर। चेंज करने के लिए लिमिट्स को अपन क्या करें, रिवर्स करें। क्यों करें बोलते, वो इन्फिनिटी लाना है। इन्फिनिटी लाना बोलते कब होता, एनी नंबर बाई जीरो फॉर्मेट लाए तो इन्फिनिटी होता। इसलिए इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके सब्स्टिट्यूट करें लिमिट। तो यहाँ पर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। फिर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें x की प्लेस पे 1, तो y की वैल्यू 0। तो ये आपको लोअर लिमिट और ये आपको अपर लिमिट मिल गई। ये लोअर लिमिट। सर अपन ये dx इजिकल्स टू डिफरेंशिएटिंग करें, माइनस डिफरेंशिएट। वन हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। -1/1 + y होल स्क्वायर डी क्यों लिखे? हाँ, ये अभी आपको बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का फॉर्मूला, हाँ। राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/, फॉर्मेट है तो -1/y²। जो भी 1/, फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन होता है वो -1/, दैट टर्म एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। x की जगह यहाँ y है। ओके सर। ठीक है। अब तो उसके समझ बाद में आ लिमिट्स गया। को चेंज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिंप्लीफाई करें तो वी गेट द आंसर। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, यस थर्ड सर। प्रॉपर्टी करेंगे। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, बीटा ऑफ m कामा n इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा आसान है, 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन थीटा होल टू द पावर ऑफ 2m - 1 cos थीटा होल टू द पावर ऑफ 2n - 1 into d theta. This is your result we have to do. Okay, this result we have to. ओके सर। अब अपन डेफिनेशन लेते हैं ना, बीटा Yes, exactly, exactly. You're correct. बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू 0 to 1 x Yes, पावर yes. m-1। करे थे क्लास में मैम करायचो कुछ भी समझ में नहीं आया ना। by definition of, by definition of beta function, beta of m comma n is equal to 0 to 1 0 to 1 x x power, पावर m-1 ब्रैकेट 1 - x पावर n-1 अभी टाइम्स का dx। टाइम हुआ अभी, सामने रखो, n - 1 dx। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। अब आप फिर से एक सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो आप। अब यहाँ पर जैसा अपन डिनोमिनेटर को देख के लिए थे, यहाँ m - 1 है, इसका भी पावर 2m - 1। एक्स की प्लेस में साइन थीटा रखे तो आंसर प्रूव नहीं होता। तो अपन 2 भी लाना है ना, तो एक करना सब्स्टिट्यूशन, क्या करना है तो देखो, ये पुट एक्स इज इक्वल टू, साइन थीटा लिए तो नहीं प्रूव होता, साइन स्क्वायर थीटा ले, साइन स्क्वायर थीटा लिए तो ये प्रूव हो जाता आसानी से। तो सब्स्टिट्यूशन तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपको बताने की। इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन dx होता। अब देखो, ये पावर का डिफरेंशिएशन पहले करना, यहाँ पर भी जो फॉर्मूले रिलेटेड है वहां पर लिख रहा हूँ मैं। पहले अपन एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, दिस इज एन एक्स पावर n - 1 इंटू इनर फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनर फंक्शन। ये फर्स्ट फॉर्मूला अपने यूज कर यस। रहे हैं इसके अंदर। मतलब पहले पावर को डिफरेंशिएट करें, 2 ओके। साइन थीटा पावर 2 - 1, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यस पहले सर। पावर को करें, हाँ यस, वेरी गुड। तो क्या बच गया आंसर, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके। और डिफरेंशिएट यस करें सर। बोल के डी थीटा भी लगा दें। ये ओके dx, सर। मतलब इसके इसका रिप्लेसमेंट मिल गया। अब लिमिट्स भी चेंज करना पड़ता ना ओके। अपना, लिमिट्स भी चेंज करेंगे। तो लिमिट्स यहाँ पर चेंज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, अपने को 0 चलाना है तो 0 चाहता आंसर, मैं फिर भी करके बता रहा हूँ। लोअर लिमिट एक्स की प्लेस पे अगर 0 रखे, 0 = sin² थीटा, ये स्क्वायर इधर जाके √0 0 छूता, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर अपन रख सकते हैं साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती
इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाता, थीटा वैल्यू 0। अब रखेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा में अपर लिमिट, अपर ओके। लिमिट यूएल क्या रखा, अब क्या है अपर लिमिट देख सकते हैं, 1 है। पाई बाई 2। बोला वो प्रूव करना है, वो बताना है आप, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 5/2 लाना है आप। यस। 1 कैन बी रिटर्न है साइन 5/2, साइन 5/2 की जगह 1 रखते हैं, स्क्वायर इधर जाके रूट ऑफ 1 1 होता, साइन थीटा। ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 5/2। अब अच्छा, ये पूरा ऐसा क्वेश्चन है चेंज क्या? करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके लिमिट्स पूरे चेंज करके करें तो क्या होता। अभी पूरे वैल्यूज को 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो बीटा ऑफ एम का एन की वैल्यू क्या आती देखो। बीटा ऑफ एम का एन इज इक्वल टू, देखिए अच्छे से, लिमिट्स 0 to 1 चेंज होके क्या हो रहे हैं, 0 से लेके 5/2 तक जीरो टू हो रहे हैं ना। जीरो एक्स की और वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, एक्स यस। वैल्यू इज साइन स्क्वायर थीटा ऑल टू द पावर ऑफ m-1 as it is into 1 minus sin square theta ऑल टू द पावर ऑफ n-1 as it is। और ये dx की वैल्यू है अपने पास 2 डी टीटा। sin टू थीटा डी टी। cos थीटा d थीटा। यस। ठीक है, ये 2 को निकाल के रख दो बाहर, 0 से लेके 5/2 तक, ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। sin थीटा मल्टीप्लाई करे, ऐसा देखो, ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2m-2 होता, ओके। ये होता 2m-2। इसका पावर भी माइनस 1 टू। है, तो ये बेसिस आर इक्वल, तो पावर शुड बी एडेड, इसमें 1 को भी इधर भी ऐड कर ले। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 2n-2 प्लस 1, इसका और इसका बेस सेम है ना, यस सर। पावर को ऐड कर ली, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स 0 से 5/2 साइन थीटा होल टू द पावर ऑफ, सिंप्लीफाई करो कितना बचता, 2m-1 बचता, cos यस theta whole सर। to the और power of कॉस थीटा 2m में minus, 2n-1। this only we have to prove, ओके। this is your third property of beta function, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड प्रॉपर्टी, एक बार थर्ड आप देख लो अच्छे से, डाउट है तो तीन प्रॉपर्टी नहीं है ये इसके सर, अंदर। ये बेस, ये 2 sin थीटा कहाँ गया? कौन सा वाला, ये वाला। ये सेम बेस है बोल के बोले, देखिए आप। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, असल यहाँ पर फर्क करके बता देता हूँ आपको। साइन थीटा, इसके ऊपर एक पावर है, ऐसा है, m-1 है, राइट। और ये एक साइन थीटा है, इसका यस। पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो पहले मैं क्या करा, ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, साइन थीटा होल पावर 2m-2 कर दिया, फिर ये साइन थीटा का पावर 1 है, फिर हमने देखा तो क्या है, बेसिस आर इक्वल है तो पावर शुड बी एडेड कर दिया, साइन थीटा टू द पावर ऑफ 2m-2 प्लस 1, ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर दिया। हाँ। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, दिस इज 2m-1, दैट आई वांट इट, अंडरस्टैंड। यस सर। तो यस बीटा सर। फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। आप ऐसे ही मेरे को मैसेज कर लो प्रॉब्लम्स। जब भी कभी है तो डाउट, और भी जो जो डाउट है आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको कॉलेज टाइम पे पढ़ा दूँ। ओके सर। ठीक है, आप दूसरे अभी स्टूडेंट शायद अभी प्रॉब्लम्स। ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, वी हैव प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ओनली। आपके सिलेबस में ओके हमने क्या सर। रखा, प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन रखा और रिलेशन रखा, बस तीन ही चीजें रखा, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, एंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये मैं आपका सिलेबस रखा 4th यूनिट में। ओके। उसके अलावा कुछ भी करना नहीं है, अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना है, अंडरस्टैंड। ओके। तो मैं यस अभी, सर। आपको और कुछ भी डाउट है तो मैसेज करिए, मैं फ्री हो तो जरूर आपकी क्लास में लेता हूँ, कॉलेज टाइम पे कभी भी आप मेरे को बोलिए,
इफ आई एम फ्री देन आई विल हैव डेफिनेटली सेम टाइम पे इमीडिएट क्लास स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज मैं कोई दूसरी क्लास में बिजी रहे तो मैं आपको टाइम देता हूँ, वो टाइम पे स्टार्ट कर दूँ। ओके। ओके सर। ठीक है। ओके। अब मैं इसका रिकॉर्डिंग और इसका पीडीएफ आपको, मेरे को एक क्लास है अभी, उसके बाद भेजता कॉलेज में क्लास है? हूँ। फार्मेसी कॉलेज में में क्लास। आप रोज क्लासेस ले फार्मेसी। रहे सर? जी हाँ, फार्मेसी में है मेरी क्लास। ओके। सीएससी वालों को कब ले रहे हैं आप क्लासेस? फर्स्ट आवर है, सेकंड आवर है। रोज? जी। ओके सर। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।